اجمل کی ماں ہر وقت اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف کرتی رہتی، جس کی وجہ سے اجمل ہر وقت اپنی بیوی سے روکھا روکھا رہنے لگا اور فون پر عورتوں سے دل لگانے لگا۔ بیوی اگر اجمل کو اس کی ماں کا رویہ بتاتی تو اجمل اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگتا۔ تمہاری تو ماں نے تمہاری تربیت ہی نہیں کی، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز سکھائی۔ ایک دن تنگ آ کر اجمل کی بیوی رضیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ جب اجمل نے فون پر لڑکیوں سے شادی کا کہا تو وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر کے غائب ہو گئی۔ جب اجمل اپنی بیوی کو منانے گیا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی بیوی: میں کہتا ہوں اپنی زبان سنبھال کر رکھا کرو، اگر آئندہ تم نے میری ماں کے سامنے زبان چلائی تو میں تمہاری یہ چلتی زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اجمل نے رضیہ کو پھر سے دھمکانا شروع کیا تھا۔ وہ کہنے لگی: تمہاری ماں جھوٹی ہے، دن بھر میں سارے کام کرتی ہوں، اب جب بھی تم آتے ہو تمہارے کان جھوٹ بول کر بھرتی رہتی ہے۔ وہ کہنے لگا: ہاں میں تو جیسے اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں کرتی۔ میں تم سے تنگ آ چکا ہوں، یہ نہ ہو کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں۔ رضیہ رونے لگی، کہنے لگی: تم مردوں کو بس یہی دھمکی دینی آتی ہے۔ اجمل کمرے سے باہر گیا اور فرخندہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی، لیکن بیٹے کو دیکھ کر فوراً سے چہرے کے تاثرات بدلے اور کہنے لگی: دیکھ رہے ہو اس لڑکی کی زبان کیسے قینچی کی طرح چلتی ہے۔ وہ کہنے لگا: اس کی زبان کاٹ کر رکھ دوں گا تو سیدھی ہو جائے گی۔ اجمل بے تحاشا غصے میں تھا۔ رضیہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، اب تو جیسے یہ روز کی روٹین بنتی جا رہی تھی۔ جب بھی اجمل گھر پر رہتا تو فرخندہ بیگم اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر شروع ہو جاتی، اس کے کاموں میں نقص نکالتی، اور اجمل کو اب رضیہ کی ہر چیز میں نقص نظر آتا۔ بار بار فرخندہ بیگم کہتی کہ میں نے اپنا ہیرے جیسا بیٹا بے قدرے لوگوں میں دے دیا ہے۔ ارے میں نے تو سمجھا تھا کہ اس کے ماں باپ بڑے گھر میں رہتے ہیں، اچھا خاصا جہیز دیں گے، لیکن انہوں نے تو بیٹی ہمارے سر پر ڈال دی، نہ تو لڑکی کی شکل ہے نہ عقل ہے، اور زبان اتنی چلتی ہے۔ فرخندہ کی رنگت گندمی تھی اور فرخندہ بیگم کو لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے رضیہ سے اپنے بیٹے کی شادی کر کے رضیہ اور اس کے گھر والوں پر کوئی احسان کیا ہے۔ حالانکہ رضیہ کے گھر والوں نے جہیز اچھا دیا تھا، بارات کا کھانا بھی لاجواب تھا، ہر چیز دی تھی، لیکن فرخندہ بیگم کو عیب ہی نظر آتے تھے، اور ہر وقت جب وہ اجمل کو رضیہ اور رضیہ کے گھر والوں کے عیب گنواتی رہتی تو اس کی نظریں بھی رضیہ کو اسی انداز سے دیکھنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اور رضیہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہاں دو لڑکیاں اپنی عادت سے مجبور ہو کر اجمل سے بات چیت کرنے لگی۔ اجمل نے اپنا فون نمبر بھی دے دیا۔ اب تو اسے رضیہ اور بھی بری لگنے لگی تھی۔ گھر آتا، کھانا کھاتا تو کھانے میں نقص نکالنے لگتا۔ تمہارے ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہے، کیسا پکاتی ہو، پورا دن کیا کرتی ہو، ایک کھانا ہی تو پکانا ہوتا ہے، دن بھر تھک کر گھر آؤ اور کھانا بھی ایسا ملتا ہے۔ حالانکہ کھانا بد ذائقہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ماں کی باتیں سن سن کر اجمل کو بد ذائقہ لگنے لگا تھا۔ رضیہ نے دیکھا کہ ساس اور شوہر ہر وقت اس کے ہر کام میں نقص نکالنے لگے ہیں تو اس کی بھی زبان آگے سے چلنے لگی۔ جیسے ہی اجمل کھانا کھاتا رضیہ سے جھگڑا کرتا اور اوپر آ جاتا، چھت پر آ کر منہ میں سگریٹ دبا کر اپنی کولیگ سے باتیں کرنے لگتا، اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا، تعریفیں کرتا، گھنٹوں باتیں کرتا رہتا۔ رضیہ جب تنگ آ کر چھت پر آتی تو اسے دیکھ کر کہتا کہ تم میری جاسوسی کیوں کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی: جو وقت تمہیں مجھے دینا چاہیے تم دوسری عورتوں کو دے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ کہنے لگا: زبان سنبھال کر بات کرو، مجھے پتا ہوتا ہے کہ تم کس قسم کی ہو، تم سے شادی ہی نہ کرتا تو میرے گھر کو اور میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب اگر میں وقتی طور پر کچھ سکون چاہتا ہوں تو وہ بھی تمہیں تکلیف دہ، دفع ہو جاؤ، خبردار۔ جو اوپر آئی میری جاسوسی کی تو اس نے بری طرح سے رضیہ کو ڈانٹ کر بھیج دیا۔ وہ واپس آ گئی۔ وہ دو دن اس نے کھانا نہیں بنایا، نہ ہی فرخندہ کو ناشتہ بنا کر دیا۔ اجمل کہنے لگا: یہ کیا حرکت ہے، میری ماں کو تم ناشتہ بھی نہیں دیتی اور 2 دن سے تم کھانا بھی نہیں پکا رہی۔ وہ کہنے لگی: میں تو ویسے بھی گندے کھانے بناتی ہوں جو مجبوراً تم لوگ اپنے حلق سے اتارتے ہو، بہتر ہے کہ تم بازار سے لے کر آؤ، اور ویسے بھی میرا کون سا احساس کرتے ہو، میرا خیال رکھتے ہو یا میری کوئی ضروریات کو پورا کرتے ہو جو میں تمہیں پکا کر یہاں پر کھلاؤں۔ یہ سن کر اجمل نے ایک زوردار تھپڑ رضیہ کے منہ پر مارا۔ کہنے لگا: زبان چلاؤ گی تو زبان کاٹ کر رکھ دوں گا، تمہاری ضرورت پوری نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی: کون سی پوری کرتے ہو، جب موسم گرم کے کپڑے بنانے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کے جوڑے لا کے رکھ دیتے ہو اور مجھے کہتے ہو جاؤ اپنے باپ اور بھائی سے لے کر آؤ۔ کیا ان کا کوئی فرض نہیں ہے کہ شادی شدہ بیٹی کو 4 جوڑے ہی دے دیں؟ جب میرے 4 جوڑوں کی ذمہ داری میرے گھر والوں نے اٹھانی ہے تو تمہاری 2 وقت کی روٹی کی خاطر میں کیوں اپنی زندگی برباد کروں؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا: تمہاری
तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हें तरबियत ही नहीं दी कि शौहर से लड़ो, झगड़ो और बदतमीजी करो, वरना ऐसी औरतें जो अपने घर का सुकून कायम रखने के लिए सास की भी सुनती हैं, नंदों की भी सुनती हैं और सारे काम भी करती हैं। देखो मुझे किसी इंतहाई कदम पर मजबूर ना करो। वो कहने लगी, कौन सा इंतहाई कदम उठाना चाहते हो? जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है ना, मैं जान चुकी हूँ कि मेरा घर नहीं बच सकता। अगर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम में गुजर रही है तो मेरी जिंदगी भी जन्नत में नहीं गुजर रही। मैं भी बहुत अजियतनाक जिंदगी गुजार रही हूँ। सुबह नाश्ता बनाओ तो कहती है काली चाय बना दी, कभी कहती है खाली दूध में पत्ती डाल दी। खाना बनाओ तो माँ बेटे के ऐब शुरू हो जाते हैं, ये क्या पका लिया है, वो क्या कर लिया। घर की सफाई करो तो तुम लोगों को ख्वामाख्वा मिट्टी और जाले नजर आने लगते हैं। पूरा दिन मैं तुम लोगों को राजी करने के लिए अपना आपको हलकान करती रहती हूँ, तुम्हारे सारे कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। इसके बावजूद मुझे ये सुनने को मिलता है कि मैं करती क्या हूँ। मुझे तो कोई काम ढंग से करना आता ही नहीं। जब मुझे कुछ भी ढंग से करना नहीं आता तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? फरखुंदा कहने लगी, बस भी कर दो। हमने तो आज तक अपने शौहर के सामने कभी अपनी जबान नहीं चलाई। हाय हाय, अगर मैंने अजमल के अब्बा के साथ ऐसी जबान चलाई होती तो मेरी जबान काट कर फेंक चुका होता। तौबा तौबा, आजकल की लड़कियां कितनी तेज जबान है, हमें तो पता ही नहीं होता था कि मुंह में जबान भी होती है कि नहीं। मेरी सास तो कहती थी, फरखुंदा लगता है तुम्हारे मुंह में जबान नाम की चीज ही नहीं। चुपचाप मैंने सबकी सुनी सब। अरे तुम्हारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी। मेरा तो भरा ससुराल था, 4 देवर थे, 3 नंदे थी, सबके काम करती थी। मजा लेके उफ भी कहा हो और एक तुम हो, इतनी बातें सुना देती हो। ये कहते हुए इसने दुपट्टे से अपनी आंखें रगड़नी शुरू कर दी, जैसे कि आंसू साफ कर रही हो। रजिया कहने लगी, कौन से 4 देवर और 3 नंदे? मैंने तो आपके घर में किसी ससुराल वाले को आते नहीं देखा। यहाँ तक कि मेरी शादी पर भी सिर्फ आपका मैका आया था, ससुराल में से तो कोई नहीं आया था। इतनी आप अच्छी बहू होती तो आपके देवर और नंदे क्यों आपसे नहीं मिलते? यहाँ क्यों मिलने नहीं आता? यहाँ कोई मिलने नहीं आता। ये सुनकर फरखुंदा के माथे पर बल पड़े। कहने लगी, अजमल देख रहे हो इस लड़की की जबान? अब ये सुनना रह गया था। इस उम्र में मेरी बहू मुझे बातें सुनाएगी। इतना कुछ ससुराल वालों के साथ करके भी इनकी नजर में बुरी ही रही थी। बुरी रही नहीं कोई मिलता मुझसे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? रजिया कहने लगी, यही हाल मेरा भी है। मैं भी जो मर्जी कर लूं, आप लोगों की नजर में कभी अच्छी नहीं बन सकती। इस बार फरखुंदा बेगम का मुंह बंद हुआ, क्योंकि इन्हें दोबारा जवाब मिला था। अब तो इसने अजमल को भी सिखाना शुरू कर दिया कि अब तुम्हारी बीवी काबू से बाहर हो गई है। देखो, अपने मुंह से तलाक का नाम लेने लगी है। इसकी जबान खींच कर रखो, इसे खींच कर रखो और इसे कहो कि हमारे घर में तलाक नहीं दी जाती। फरखुंदा बेगम जानती थी कि अगर रजिया अपने में के चली गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इन्हें तो किसी काम की आदत ही नहीं रही थी। अजमल से रजिया की शादी करने से पहले उन्होंने तमाम मुलाजमा को जवाब दे दिया था और ना इनके घर में कपड़े धोने की, सफाई करने की, बर्तन धोने की मुलाजमा आती थी। लेकिन सारा काम बहू से करवाने के चक्कर में सारी मुलाजमीन को हटाकर रजिया को यही कहना शुरू किया कि मैं तो सारे काम खुद करती थी। हालांकि इन्हें काम की तो आदत बिल्कुल भी ना थी। उन्होंने कभी ससुराल से बनाकर रखी थी, बल्कि शादी का 1 साल नहीं हुआ था अलग हो गई थी, वो भी लड़ झगड़ कर, फसाद बर्पा कर, क्योंकि शौहर को पहले ही अपने काबू में कर चुकी थी। जो कहती थी इसका शौहर वही करता था। अपने देवरों और नंदों से भी फरखुंदा बेगम ने कभी बनाकर नहीं रखी, बल्कि इनसे तो ताल्लुक ही खत्म कर चुकी थी। इसलिए अजमल की शादी पर के ससुराल वालों में से कोई भी नहीं आया था। यही बात अब रजिया के मुंह से ताने की सूरत में इन्हें सुनी पड़ी तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चंद दिन तो उन्होंने अजमल के कान में कुछ नहीं डाला, लेकिन अजमल अब आदी हो गया था। पहले तो सिर्फ सिलसिला बातों तक ही था, लेकिन अब तो वो होटल का खाना खिलाने भी ले जाता था। छोटे मोटे तवाइफ भी देने लगा था, इसलिए रात को देर से घर वापस आता। रजिया इसे कई बार कह चुकी थी, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं अपने घर वालों से कहूंगी। वो कहने लगा, मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करो। जब घर में सुकून नहीं मिलेगा तो बाहर जाकर ही सुकून हासिल करूंगा। मैं भी तुम्हारे घर वालों से कह दूंगा कि आपकी बेटी बदतमीज है, आपने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की, हर वक्त मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, तो मैं क्यों इसके साथ वक्त गुजारूं। वो लड़कियां पैसे की लालच में अजमल के साथ घूमती फिरती थी, क्योंकि वो इन्हें कपड़े भी दिलाता, इन्हें खिलाता पिलाता भी था, तोहफे भी लेकर देता, यहाँ तक कि इनके मोबाइल में बैलेंस तक डलवाता। और यहाँ
रज़िया को इसने आज तक कोई तोहफा नहीं दिया था। एक बार जैसे ही अजमल वापस आया, रज़िया ने भी एक ड्रामा शुरू कर दिया। अपना मोबाइल पकड़कर हंस कर यूं ही बातें करने लगी जैसे किसी से बात कर रही हो। अजमल के तो जैसे होश उड़े। कमरे में आते ही इसने रज़िया का मोबाइल छीना, कहने लगी, इधर दो मेरा मोबाइल। तुम होते कौन हो मेरा मोबाइल छीनने वाले? वो कहने लगा, किससे बात कर रही हो? कहने लगी, क्यों, तुम्हें क्या मसला है? तुम भी तो जाते हो ना, लड़कियों के साथ वक्त गुजारते हो और इनसे फोन पर लंबी लंबी बातें करते हो। तुम मुझे देते क्या हो? अपना वक्त तक तो नहीं दे सकते। मैं भी किसी और से बात करके अपना दिल बहला सकती हूँ। मुझे भी सुकून चाहिए। तुम जब घर के अलावा बाहर सुकून तलाश कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। इसका ये कहना था कि अजमल ने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ और इसका मोबाइल पकड़कर दीवार पर दे मारा। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने किसी से बात की तो तुम्हारी गैरत जाग उठी और तुम रोज लड़कियों से बातें करते हो, इनके साथ घूमते फिरते हो। ये मेरा भी सबर है ना कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। कहने लगा, मेरे हाथों से मर जाओगी तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द से बात करने की? रज़िया ने ये नहीं बताया कि वो किसी से बात नहीं कर रही थी। यही कहने लगी कि जब तुम कर सकते हो तो मैं भी करूंगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। फरखुंदा बेगम भी ये सब बातें सुनकर कमरे में आ गई। कहने लगी, ये सब क्या हो रहा है? वो कहने लगा, अम्मा ये गैर मर्दों से बातें करती है और मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो रज़िया का गला घोटने लगा था, लेकिन रज़िया ने इसके हाथ पकड़ के इसे पीछे धक्का दिया। कहने लगी, खबरदार, जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की मैं अपने घर वालों को बता दूंगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे घर वालों को बताता हूँ कि तुम किस किस्म की लड़की हो। कहने लगी, जिस किस्म के तुम हो। तुम क्या समझते हो मेरा फोन तोड़ दोगे तो मुझे डराओगे धमकाओगे तो मैं बाज आ जाऊंगी? जब तक तुम बाज नहीं आओगे मैं भी बाज नहीं आऊंगी। मैं गली मोहल्ले के मर्दों से अफेयर चलाऊंगी और इनके साथ बाहर घूमने फिरने भी जाऊंगी, क्योंकि जब मेरा शौहर मुझे लेकर नहीं जा सकता तो मुझे भी किसी न किसी के साथ तो वक्त गुजारना। अजमल का तो गुस्से से बुरा हाल था। फरखुंदा ने अजमल का हाथ पकड़ा और इसे कमरे से बाहर ले गई। जानती थी कि अगर लड़ाई बढ़ गई तो रज़िया के घर वाले भी आ जाएंगे और अगर रज़िया के घर से चली गई तो घर का निजाम बिखर जाएगा। कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अम्मा मेरा हाथ छोड़े, मैं इसे जान से मार डालूंगा। ये होती कौन है गैर मर्दों से बातें करने वाली? मुझे नहीं लगता ये सच बोल रही है। अरे पूरा दिन तो घर के कामों में लगी रहती है और इसका फोन तो यूं ही पड़ा रहता है और कभी कभी तो पूरा दिन मेरे पास ही पड़ा रहता है। ये सब इसलिए कर रही है ताकि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। वैसे भी तुम्हें किसने कहा कि दूसरी लड़कियों के साथ घूमो फिरो और इस पैसे जाया करो? अरे यही पैसे मुझे दिया करो, मैं जमा करूं ताकि बुरे वक्त में काम आए। अजमल कुछ शर्मिंदा सा हुआ था लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। एक दिन जब वो घर पर आया तो रात के 4 बजे रहे थे और इस बार वो कोठे से आया था। इसकी कमीज पर लिपस्टिक का निशान देखकर रज़िया की आखिरी बर्दाश्त भी खत्म हुई थी। इसने अजमल से कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह ही अपना सामान पैक कर माँ बेटे के उठने से पहले ही वो जा चुकी थी। अजमल की जब आँख खुली तो इसकी माँ रज़िया पुकार रही थी, कब उठोगी? अरे मुझे बढ़िया का नाश्ता दे दो, भूख से जान निकल रही है। एक तो मेरे जोड़ों के दर्द ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा और वरना तुम्हारी मिन्नतें थोड़ी करती। अरे ए अजमल उठ, अपनी बीवी को कह मुझे नाश्ता बना कर दे। अजमल हैरान हुआ क्योंकि बेड तो खाली था, वॉशरूम भी खाली था। वो बाहर आया और पूरा घर देखा लेकिन रज़िया कहीं नहीं थी। फरखुंदा बेगम को जब पता चला कि रज़िया नहीं है तो सीना पीटने लगी। हाय हाय, लगता है किसी के साथ भाग गई। अजमल, मैंने कहा था ना इसे काबू में रख, लेकिन तुझे तो बाहर की औरतों से फुर्सत नहीं थी। वो कहने लगा, ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? मैं इसके घर वालों को फोन करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो फोन करता इसके भाई के नंबर से अजमल को फोन आया, लेकिन आवाज रज़िया की थी। कहने लगी, मैं अपने मैके में आ गई हूँ। तुम जैसे शख्स के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती जो इस कदर बुराई में मुब्तला हो चुका है कि गैर औरतों के साथ गुजार कर आता है। जिसके साथ तुमने रात गुजारी है, जिसकी लिपस्टिक का निशान तुम्हारी कमीज पर मौजूद है, इसे अपने घर में लाकर इसे कहो कि तुम्हारे घर को संभाले और तुम्हें भी। ये सुनकर अजमल को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, ठीक है मैके में रहना, बैठी रहो मैके में, मैं देखता हूँ कब तक बैठी रहती हो। इसे लगा कि 4 दिन में रज़िया का दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तो वापस आ जाएगी, लेकिन 15 दिन गुजर गए थे। घर गंदा पड़ा था, धोने वाले कपड़ों का ढेर था, बावर्ची खाने में गंदे बर्तनों से बदबू फैल चुकी थी। घर आने को जी नहीं चाह रहा था। तब एहसास हुआ कि रज़िया क्या करती थी। बाजार के खाने खा खा के फरखुंदा बेगम का पेट खराब हो गया और इतने बाजार के खानों की आदत अजमल को भी नहीं थी। पूरा घर बिखर चुका था, उल्टा होके रह गया था। अब वो फरखुंदा बेगम जो मुँह
भर भर के बहू की बुराइयां करती थी, बार बार कहती थी ले जा आ इसे, अरे वो थी तो घर लगता था, ले आ इसे, वो थी तो घर लगता था, मुझसे तो कोई काम नहीं होता, पूरे घर का हशर नशर होके रह गया है। कितनी बार तुझे समझाया कि बीवी को वक्त दिया कर, तूने तो गैर औरतों पर पैसा लुटाना शुरू कर दिया। कमबख्त, कौन पूछेगा तुझे, बड़ी मुश्किल से तेरा रिश्ता हुआ था, माँ का तो बयान ही बदल चुका था, लेकिन कल तक तो बहू बुरी लगती थी, आज इसके गैर मौजूदगी में जो घर की हालत हुई थी इसे बेटा बुरा लगने लगा था। वो कहने लगा, अम्मा ये तुम कह रही हो, अब तक तो तुम मेरे यही कान भरती थी कि मेरी बीवी कुछ नहीं करती, वो ढंग से बर्तन नहीं धोती, वो ठीक से सफाई नहीं करती, वो कुछ भी नहीं करती, और आज तुम्हें वो सब नजर आने लगा। तुमने ही मेरा दिल रजिया से इकट्ठा किया था, तभी मेरा दिल दूसरी औरतों में लगने लगा था, और अब तुम्हें मैं बुरा लगने लगा हूँ। तुम ही तो कहती थी ना, बीवी को कहीं बाहर मत लेके जाना, सर पे चढ़ जाएगी, इसे कभी तोहफा मत ला कर देना, इसका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। फरखुंदा बेगम नजरें चुराने लगी, कहने लगी, अब मैं कह रही हूँ ना कि जाके ले आओ। जैसे ही अजमल रजिया को लेने गया तो सामने का मंजर देखकर इसके होश उड़ गए, क्योंकि इसके भाई इसे कह रहे थे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस शख्स के साथ जिंदगी गुजारने की जिसे तुम्हारी कदर नहीं, हम खुला का मुकदमा करेंगे। ये सुनकर रजिया भी इस बात पर राजी हो गई थी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक जैसे दरवाजा खुला तो सामने शर्मिंदा शर्मिंदा अजमल खड़ा था और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा कि आइंदा कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा और रजिया को भी कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। इसके भाइयों ने भी कई शर्तों पर रजिया को वापस भेजा। अब तो फरखुंदा बेगम भी चुप रहती हैं, क्योंकि जान गई हैं कि आखिर घर की रौनक बहू से ही होती है।